ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥਰਡ, ਫੋਰਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਂਪਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਘਟੂਗਾ ਉਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਘਟੂਗੀ ਉਨੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਪਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਡੀ ਏ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲ ਡੀ ਏ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਪਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਐਫ ਨੋਟ ਇਸ ਪਾਵਰ ਓਮੇਗਾ ਮੇਗਾ ਟੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ ਈ ਐਮ ਐਫ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਈ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਵੀ ਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਓਮੇਗਾ ਮੇਗਾ ਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ ਮੇਗਾ ਟੀ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਸਾਈਨ ਮੇਗਾ ਟੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਓਮੇਗਾ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ ਆਫ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਓਮੇਗਾ ਮੇਗਾ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕਾਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਫੋਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਸਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਦੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਦਾ 12 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਘਟਦਾ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੱਕ ਆਊ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਊ। ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 8 ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 12 ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ 8 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 8 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 8 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਨੋਟ ਈ ਦੇ ਪਾਵੇ ਆਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਨੋਟ ਈ ਦੇ ਪਾਵਰ ਓਮੇਗਾ ਮੇਗਾ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ आई इज इक्वल टू आई नॉट ई दिस पावर यूटा मेगा टी, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, डी को अपन डी टी कर लो, ठीक है। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕੀਤਾ डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई नॉट ई दिस पावर यूटा मेगा टी ई दिस पावर यूटा मेगा टी, ठीक है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡੀ ਕਿਊ upon dt ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ आई इंटू dt ਆ ਗਿਆ। ठीक है, आई की वैल्यू आप इतना पुट करती तो अपने को आ चीज़ आ गई। हम आप इंटीग्रेशन करती, हाँ बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन जी करनी आती है थोड़ा मैथ की +1 +2 के यूटा मेगा टी डिवाइड बाई यूटा मेगा। ठीक है, इनू आप जो सॉल्व करेंगे तो अपने को आ चीज़ बनी, एक क्यू की वैल्यू निकलेगी। हम अपने क्यू की वैल्यू भी आ गई, आई की वैल्यू भी आ गई, ये दोनों वैल्यू कि पुट करनी अपने जी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाई सी ये चाहे इच पुट कर दो चाहे इच पुट कर, आई की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, उस तो बाद ये दोनों वैल्यू पुट करती हैं, इच आप जी आप आई नोट की वैल्यू कढ़नी, जिवें आप ए की वैल्यू कढ़ी थी तो आप आई नोट की वैल्यू कढ़नी, दैट इज साइलेंट नोट अपॉन दिस वन। हुण ये की है, ये की इलैक्ट्रिकल इंपीडेंस है, वो मैकेनिकल इंपीडेंस होंगे नीचे रिटर्न, ये की है इलैक्ट्रिकल इंपीडेंस। ये दो पार्ट होंगे, एक रिएक्टिव पार्ट एक रजिस्टिव पार्ट। आ रजिस्टिव पार्ट हो गया, रिएक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, इनू आप जेड सी कहता इलैक्ट्रिकल इंपीडेंस, जेड ई। जेड ई कि बराबर आ गया आर प्लस यूटा मेगा 1 यूटा मेगा। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀट्यूड ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ आर ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस मेगा एल प्लस 1 मेगा सी ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪਾर्ट हो गए, एक रजिस्टिव पार्ट हो गया, एक हो गया अपना रिएक्टिव पार्ट। रिएक्टिव पार्ट अपना आ हो गया मेगा एल प्लस 1 मेगा सी, तो रजिस्टिव पार्ट आया हो गया जिसके करके रजिस्टेंस रुकती अपनी जी ऑसिलेशन की घटदियाँ। ये भी दो पार्ट हो गए, ये हो गया इंडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटिव पार्ट। ठीक है, जिमें उच्च होंदा सी एक इनर्शियल पार्ट एक स्टिफनेस पार्ट, उदा ही ये हो गया अपने को एक इंडक्टर वाला पार्ट, एक कैपेसिटिव पार्ट। हुण आई इज इक्वल टू किहदे बराबर आ गया, आई नोट डिवाइड बाय जेड ई। ठीक है, हुण जेड ई नूं आपां इहदे च जो आपां ए आई नोट की वैल्यू आपां पुट करांगे तो अपने को आ जाऊगा आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड ई इन ईज पावर यूटा मेगा टी। ये पुट करती उपर वाले इत्थे। ठीक है, तो अपने को आई की वैल्यू निकले, वो आप एक्स की वैल्यू कढ़ते थे पाई। हूँ आप उदा ही फिर पुट कर दो, आर में पुट कर दो जेड डी कॉस फाइव यूटा मेगा एल मैंस 1 मेगा सी में पुट कर दो जेड डी साइन ऑफ फाइव। इन्होंने दोनों डिवाइड कर दो तो अपने को टैन फाइव आ गया। हूँ ये आ टैन फाइव की वैल्यू जा रखनी अपने, फिर आप फिर उदा ही वेरीएशन करनी ने। ठीक है, जिमें आप वेलोसिटी दे करते थे, एक्सलेशन की वेरीएशन करते थे, तो इन्होंने दोनों को आप वैल्यू जी दोनों वैल्यू कढ़ी ने आर तो मेगा की, ये जेड ये पुट कर देंगे ये आ वाली चीज़ आर प्लस यूटा मेगा एल तो 1 मेगा सी पुट कर दो तो अपने को आ चीज़ बन जेड डी कॉस फाइव यूटा जेड डी साइन फाइव। जेड डी बाहर कट लिया कॉस फाइव यूटा साइन फाइव, ये बन गया ई रिस पावर यूटा फाइव। ये वैल्यू आप जेड डी की वैल्यू पुट कर दो जो करंट अपनी इक्वेशन कढ़ी सी आपने। ठीक है, इस वैल्यू जेड डी की वैल्यू पुट कर दो, जो आप इस जेड डी की वैल्यू पुट की तो अपने को आ चीज़ बन गई। इनू आप उपर जाके मैच करता तो अपने को जिमें उस एक्स की वैल्यू है इस अपने को आई की वैल्यू सोल्यूशन, दिस द सोल्यूशन ऑफ फोर्स इलैक्ट्रिकल ऑसिलेटर। फोर्स इलैक्ट्रिकल ऑसिलेटर का सोल्यूशन आ गया। हूँ आप फिर उदा ही वेरीएशनस करनी है। वेरीएशन किस करनी है, वेरीएशन हम देखो पहले नंबर पर है कहना फेज डिफरेंस कढ़ना बिटवीन करंट एंड ड्राइविंग फोर्स। जो करंट आ तो ड्राइविंग फोर्स की फेज डिफरेंस है। ड्राइविंग फोर्स आप पहले कढ़ी है एप्सिलॉन इक्वल टू साइन नॉट कॉस मेगा टी। करंट अपने को इतों कढ़ लिया, इतों कॉस मेगा टी साइन मेगा टी, दोनों बराबर रखता। हूँ देखो दोनों रियल पार्ट इन्हों आप पूरा करना इतने यूटा साइन मेगा टी सी। ठीक है, ये यूटा ए नोट अपॉन जेड डी साइन ऑफ मेगा टी। दोनों रियल पार्ट कंपेयर कर लो चाहे इमेजिनरी पार्ट, इन्हें रियल पार्ट लिखा रियल पार्ट कर लो चाहे इमेजिनरी कर लो, दोनों देख लो। ठीक है, दोनों कंपेयर करो, दोनों ही फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई का। यह मतलब कि जी करंट आ वो ई एम एफ वोल्टेज नालों फेज डिफरेंस 5 फेज डिफरेंस पिछे रहेगा। हूँ टैन आप हमने 5 की वेरी किमें करना ये भी देखना वेरीएशन। टैन 5 फेज डिफरेंस आप कढ़ लिया 5 पिछे रह गए। टैन 5 कि मेगा एल ये आप उपर कढ़े सर ये याद रखना पैना तुम मेगा एल 1 मेगा सी अपॉन आर। ठीक है, हूँ मेगा की वैल्यू स्मॉल आ। ठीक है, मेगा टेंस टू की है 0, मेगा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो मेगा की वैल्यू 0 आ तो 0 ना मल्टीप्लाई 0 बन गया, ये इनफिनिटी बन गया। ठीक है, तो हम की बन गया 0 माइनस इनफिनिटी अपॉन आर दैट इज माइनस इनफिनिटी, पाई की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 2। यदा मतलब की है जो मेगा की वैल्यू फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा घट आ, जो करंट आ वोल्टेज तो ई एम एफ तो पिछे रह जूगा कितना 5/2।
जे प्लस लिखना हो फिर अगे लंघ जूगा, और लीड्स द ड्राइविंग फोर्स बाय एंगल पाई बाय 2। ठीक है, ओके जी। उस तो बाद जो ओमेगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc दोनों बराबर ने तो की होगा, उपर जी 0 बन जाने, 0/r तो फाई की वैल्यू कितनी है 0। जो फाई की वैल्यू 0 पुट करांगे तो दोनों की हो गए फेज के होंगे, उस भी कॉस ओमेगा डी, उस भी कॉस ओमेगा डी, फाई की वैल्यू 0 हो गई, दोनों ही बराबर हो गए। देखो ध्यान थोड़ा ध्यान नाल देखने वाली चीज़ है, किमें 0 बराबर किमें हो गए। देखो इतने फाई की वैल्यू 0 आ गई, इतने है ही नहीं फाई, इतने कॉस ओमेगा डी है, इतने भी कॉस ओमेगा, तो दोनों ही बराबर ही हो गए, फेज डिफरेंस 0 हो गया भाई, ये चीज़ देखनी है जी। उस तो बाद जो ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज, ठीक है, तो ओमेगा जी को 0 इनफिनिटी हो गया, तो इनफिनिटी ये पुट करके देख लियो, मैं बार बार नहीं आप इधर उधर कर सकते। इनफिनिटी मैन 0/r दैट इज इनफिनिटी है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई π/2, जो फाई की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो करंट लैग बिहाइंड, हम माइनस पाई इतने फाई की वैल्यू पाते π/2 पुट की, ये माइनस हो रहा है, आ देखो माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यह मतलब करंट पिछे रह गया, EMF नाल बाय एंगल π/2। उस तो दूजे नंबर पर अगे की कहना वेरीएशन ऑफ करंट एंपलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी, करंट जो एंपलीट्यूड आ वो किमें वेरी करता विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा नाल। हम करंट एंपलीट्यूड पहले अपन पता होना चाहिए, EMF का आ गया, करंट का अपने को आ, यदा एंपलीट्यूड की आ मूरला, ये मैं मूरे नोट कर लिया, ये ZD की वैल्यू पुट करती आ चीज़। हम आप ZD नूं देखना जो तो आप आई की वैल्यू पता लगूगी, आई की वैल्यू घटती है बढ़ती है, जो ओमेगा की वैल्यू स्मॉल आ, ओमेगा टेंस टू 0, ओमेगा इंटू एल भी टेंस टू 0 हो जाऊगा, तो 1/0 इनफिनिटी बन जाऊगा ओमेगा सी, ये वैल्यू इनफिनिटी बन गई। ये मैथ किया है आह इनफिनिटी 0 किमें बनता है, मैं तुम दस भी दिता पहले किमें करना, तो आप वैल्यू जो पुट की तो अपने को नीचे जो इनफिनिटी है, इनफिनिटी के कोई चीज़ ऐड करते हैं वो भी इनफिनिटी होती है, जे इनफिनिटी अंडर रूट वो भी इनफिनिटी हो गया, जो किसी चीज़ को इनफिनिटी ना डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना होता 0। यदा मतलब की होया जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा घट है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी है 0 हो, पर ये देखो कल ध्यान रखो, आ चीज़ा देखो ओमेगा एल की वैल्यू 0 होगी, इंडक्टेंस तो 0 होगी, पर ओमेगा सी जी है कैपेसिटेंस तो ज़्यादा, यदा मतलब जो ऑसिलेटर कैपेसिटेंस कंट्रोल ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस का कंट्रोल ज़्यादा होगा। जो ओमेगा की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है तो ओमेगा की वैल्यू इनफिनिटी होगी, ओमेगा एल इज इक्वल टू इनफिनिटी हो गया, 1/ωc 0 हो गया। ठीक है, हम ये वैल्यू आप जो पुट की तो अपने को आई की वैल्यू फिर 0 आ गई, पर हम जो अपना ऑसिलेटर वो इंडक्टेंस कंट्रोल आ गया, क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 है, इन्हों पर इंडक्टेंस कंट्रोल करना है। हम कहना ओमेगा की वैल्यू कि ओमेगा की वैल्यू होगी जिसे करंट का एंपलीट्यूड के मैक्सिमम होगा। हम करंट का एंपलीट्यूड मैक्सिमम तो होगा जो थले डिनोमीनेटर है नीचे जी चीज़ है ये जी घट होगी, ये जिनी घट होगी उन्नी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यदा मतलब यदा डेरिवेटिव आप इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, इनू मिनीमम होना चाहिए, यदा डेरिवेटिव आप लैके 0 पुट करते तो ऐ पर उदी फिर डेरिवेटिव किया जिमें आप पहला मैकेनिकल ऑसिलेटर किया वही टर्म आप इतने करनी है, इनू मैंने 0 पुट करता, इतों आप ओमेगा की वैल्यू कढ़नी, ओमेगा जी को 1/LC का अंडर है। ठीक है, हम ये ओमेगा अपने को आई जी आप रेजोनेंस से आई, आ जी ओमेगा सी ये अपने को सी लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर से नैचुरल फ्रिक्वेंसी, हम ये थोड़ी जी घट है, ये R दस के 4L दस के तो अंडर होंगे मैंस होंगे, ये कोई नहीं मैंस होंगे, यदा मतलब की है ये वैल्यू थोड़ी जी स्लाइटली लैस दैन सॉरी ग्रेटर दैन ये वैल्यू नैचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये सी अपना इलैक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, उस बाद मैरिकल देख लियो, दो चार कर ले, उस तो बाद जोड़ा है वा मेन मैं थोड़ा हर एक क्लास एक साल हर एक क्लास मैं यही रिपीट किया भी एक आर्टिकल है तीजे चैप्टर वो हर एक साल पेपर के आता ही आता, 99% श्योर है भी आँदा ही आता। वो आँदा की है भी जी आप पावर सप्लाई की फोर्स ऑसिलेटर, ठीक है, वो कि बराबर आ पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स ऑसिलेटर, मतलब जिन्ना पावर जो ऑसिलेटर जी आप पावर सप्लाई करते हैं वो कि बराबर होनी चाहिए जिन्ना उस पावर डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट का मतलब जिनी लॉस हो रही है उन्नी ही आप पावर सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई टू द ऑसिलेटर जी इक्वल होनी चाहिए है इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स ऑसिलेटर। ये प्रूव करने हम जो प्रूव करना वा ये एक तो जो आर्टिकल दिता है पावर सप्लाई टू द फोर्स ऑसिलेटर,
बाय ड्राइविंग फोर्स। ये आर्टिकल जिहड़ा डिसिपेटेड है वो न्यूमेरिकल है। ये दोनों इकट्ठे होंगे ने, दोनों प्रूव करना होंगे कि भी ये दोनों प्रूव करो भी दोनों बराबर हैं। मैं पहले पावर सप्लाइड टू द फोर्स ऑसिलेटर कहा, पावर सप्लाइड टू द फोर्स ऑसिलेटर किहदे बराबर होंदी है। पहले तो अपन एफ को पता होना चाहिए, एफ किहदे बराबर है, एफ नॉट ई रेज़ पावर ओमेगा ओमेगा टी, इहनूं आपां कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। इहदा आपां रियल पार्ट ले लिया, कल्ला कल्ला रियल पार्ट दी आपां ले लिया, आ ले लिया। इदां आपां वेलोसिटी लिखनी, वेलोसिटी आपां लिख लिया, इहनूं आपां सॉल्व करके लिखिया कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इहदा रियल पार्ट ले लिया अपने को। हुण जिहड़ी इंस्टेंटेनियस पावर है, जिहड़ी पावर हुंदी है वो दो चीज़ां दा प्रोडक्ट है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। हुण आ देखो ये डेफिनेशन दी है, इंस्टेंटेनियस पावर इज सप्लाइड by the driving force is defined as the product of instantaneous driving force acting on the oscillator to instantaneous velocity। प्रोडक्ट की ना वा इंस्टेनियस ड्राइविंग फोर्स जी एक्ट कर रही है उत्ते, फोर्स इंटू जिनी इंस्टेनियस वेलोसिटी, दोनों का जो प्रोडक्ट आ उन्होंने आप पावर कहने। तो पावर कि हो गया एफ इंटू वी, यदा भी रियल पार्ट आप ले लिया, वह भी रियल पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई करता, एफ की वैल्यू पुट करती कॉस ओमेगा टी, वी की वैल्यू पुट करती, तो आपने कुछ जो मल्टीप्लाई करके अपने आ चीज़ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਆਸੋਸੀਏਟਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਮੀਨ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਕਰਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਾਂ 0 T ਤੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, T इंटू डी टी डिवाइड बाय कैपिटल T करता, ठीक है, चाहे थले लिख लो T चाहे 1.T लिख लो, ये वैल्यू पुट करती, ठीक है। जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को चीज़ आएगी। हूँ ये कॉज ओमेगा टी मैं फाई का फार्मूला है, कॉज है कॉज भी, साइन है साइन, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई करता कॉज ओमेगा टी, नहीं वन आ कॉज स्क्वायर ओमेगा टी का फिर फार्मूला था 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, इदां ही कॉज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का फिर फार्मूला साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन, दोनों फार्मूला थे। हूँ आप इंटीग्रेशन जी इंटीग्रेशन करनी कल्ले कल्ले करनी है, इनू आप अंदर मल्ट के 1/2 तो मैं सारे तो बाहर ही कट लिया, आप है 1/2, ठीक है। आ कॉस ओमेगा टी मैं बाहर कट लिया, इचों बिच की रह गया डी टी करना इतने, फिर इतों मैं कॉस ओमेगा टी फिर बाहर कट लिया, बिच की रह गया कॉस ऑफ आ 2 ओमेगा टी इतने रह इतनी, इधर साइन ऑफ आई बाहर कट लिया, बिच रह गया साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। हूँ अपने पास 0 T डी टी की इंटीग्रेशन है आ रही, ये कितनी आ गई टी आ गई इंटीग्रेशन, अपर लिमिट मैं लोअर लिमिट अपने को टी आंसर है। हूँ जी आ दो इंटीग्रेशन ने, ये मैं तुम पहले चैप्टर भी कराई ने, इन्हें वैल्यू हमेशा 0 होती है, कॉस 2 ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी करके भी देख लियो, इतने प्रूव भी किया होगा, आप दो भी दस देंगे, ये वैल्यू हमेशा 0 होती देखते में। और कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी है, इन्होंने इंटीग्रेशन की साइन ऑफ 2 ओमेगा डिवाइड बाय 2 हो गया, 0 T है, अपर लिमिट मैं लोअर लिमिट करता, ठीक है, अपर लिमिट मैं लोअर लिमिट करता। हूँ जो आप लिमिट पुट करते हैं फिर आप अपर लिमिट पुट करते हैं, जो आप इन वाले का साइन ऑफ 4 पाई है, साइन ऑफ 0 हो गया, ठीक है। हम साइन 0 दोनों की है 0 0 होगा, तो आंसर कितना है 0 है, ठीक है। इतनी आप साइन कॉस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी है, वो वैल्यू क्या है 0 है। ये पहले मैं थोड़ा करवाया है, ठीक है, एक बार देख लो, जो कोई प्रॉब्लम आऊगी तो मैं दस दो, फिर आप 11 मिनट लग चलावे, वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। हैगा सौखी है, देखो ये इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी में एक करवा देना, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा टी और लिमिट ऑफ अपर लिख, ठीक है। हूँ मैं 2 ओमेगा टी बाहर कर लिया, बिच की जगह साइन ऑफ 2 ओमेगा की वैल्यू पुट करती, 2 पाई अपॉन टी 4 पाई बन गया, 4 पाई अपॉन टी इंटू टी, अपर लिमिट पुट करती टी आ गया मैनस, फिर लोअर लिमिट पुट करती 0 आ चक देना, इतने आ गलत पाया इन्होंने, आ है नहीं है, जब आप लिमिट ही पुट करती फिर लिखने की लोड़ की, ठीक है। उस तो बाद हूँ इन्हें टी ने टी कैंसल गया, साइन ऑफ 4 पाई आ गया, इधर ये 0 बन गया, 0 साइन 0 0 साइन ऑफ 4 पाई आल्सो 0 0 मैन 0 0 आ गया, ठीक है। ये दोनों 0 आ गए, पर ये मतलब ये सारे की वैल्यू आ तो सारी 0 हो गई, ये अपने को कलर टी आ गई, पहली इंटीग्रेशन ये आ वाली जी इंटीग्रेशन है टी आ गई, ठीक है। बाकी सारी टर्म 0 हो गई, तो अपने को आ कॉज ऑफ 5 बन गया, ये पी एवरेज निकल गई जेड टाइम कॉज ऑफ 5। हूँ जेड टाइम की वैल्यू अपने को आ चीज़ ये वैल्यू पुट करती, हूँ टैन ऑफ 5 कि बराबर है एम ओमेगा मैनस एस अपॉन ओमेगा अपॉन आर के बराबर। हूँ टैन वैसे कि बराबर होंगे, आप फार्मूला पढ़ दी पंडित बटी विशाल हारा सोना चांदी तो, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर बेस एक ट्रायंगल बना दो, आ ट्रायंगल बना दो,
ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर ਆਪਾਂ एम ओमेगा माइनस एस अपन ओमेगा लिखता, ठीक है। बेस अपन लिखता आर, तो हाईपोटनी किहदे बराबर आ गया आर का स्केयर प्लस एम ओमेगा माइनस एस ओमेगा का अंडर रूट। हम आप की कढ़ना कॉस फाइव, कॉस करेंगे बेस ओवर हाईपोटनस, बेस ओवर हाईपोटनस आप कटता, ठीक है। तो अपने को इस तरह ट्रायंगल बना के आप इनू आप कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। उस तो बाद देखो ये वैल्यू फिर आप कॉस फाइव की वैल्यू आप इतने पुट करती, इतने कॉस फाइव की वैल्यू इन्ना कट्टे गया आर का स्केयर माइनस स्केयर, तो अपने को आती बन गई। ये मैं जेड एम के बराबर लिखता, तो अपने को पावर सप्लाइड जी आ गई, ठीक है। वो कि बराबर की एफ नोट का स्केयर आर इंटू 2 जेड एम का स्केयर, ठीक है। पावर सप्लाइड जो फोर्स ऑसिलेटर लगी होगी एफ नोट का स्केयर आर इंटू 2 इंटू जेड एम का स्केयर। ये हम जा रखना भी कितनी है पावर सप्लाइड, ठीक है। हम आप पावर जी डिसिपेटेड कर देंगे न्यूमेरिकल वो भी ये बराबर आऊगी, आही चीज़ आऊगी, हम आप वो देखनी है। लेकिन वेरिएशन ऑफ पावर सप्लाई टू फोर्स ऑसिलेटर विद द ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी किमें वेरी करती है जी वेरीएशन है पावर सप्लाई जी आप करते हैं ऑसिलेटर में, वो ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ने किमें वेरी करती है, ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ने किमें वेरी करती मेगा ने। हम फिर इधर तीन केस बन गए, एक मेगा वेरी वेरी स्मॉल मेगा टेंस टू 0 हो गया, एम मेगा टेंस टू 0 हो गया, एस पॉन मेगा टेंस टू 20 हो गया। ये वैल्यू पुट कर दो जेड एम आर का स्केयर, पहला जेड एम कट दो ना, इतने आर का स्केयर प्लस एम मेगा एक ही बन गया 0 इनफिनिटी का स्केयर डन। हम नीचे इनफिनिटी प्लस आर इनफिनिटी, इनफिनिटी का अंडर रूट भी इनफिनिटी, जे इनफिनिटी किसी चीज़ ना भी ऐड कर दो लख लख ना ऐड कर दो भी आंसर कितना आऊगा 0। तो पावर एवरेज की होगी 0 होगी जो मेगा की वैल्यू स्मॉल, ठीक है। दूसरा केस की है जो मेगा की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज, मेगा टाइम्स इनफिनिटी हो गया, एम मेगा इनफिनिटी हो गया, एस पॉन मेगा टाइम्स 0 हो गया, तो भी जो नीचे इनफिनिटी है मैन 0 हो गया, तो अपने को सारी टर्म इनफिनिटी बन गई, क्योंकि इनफिनिटी के जो कोई जी आप कोई चीज़ मैनस करते हैं तो इनफिनिटी होगा, ठीक है। इनफिनिटी का स्केयर करेंगे वो भी इनफिनिटी होंगे, इनफिनिटी के कोई चीज़ ऐड करेंगे वो भी इनफिनिटी होंगे, इनफिनिटी में 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी इनफिनिटी होंगे, इनफिनिटी जे किसी चीज़ को इनफिनिटी ने डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना होगी। ਇਹਦਾ मतलब जो मेगा की वैल्यू लार्ज है तो भी जी एम्पलीट्यूड की वैल्यू की है 0 है लॉस्ट की एम्पलीट्यूड। थर्ड केस की है नैचुरल फ्रिक्वेंसी से की होगा, नैचुरल फ्रिक्वेंसी एस पॉन एम का अंडर रूट बराबर, तो हम देखो एम मेगा मैंस एस पॉन मेगा, ठीक है। एस पॉन मेगा की वैल्यू पुट कर दो चाहे एम मेगा की वैल्यू पुट कर दो, मेगा की वैल्यू चाहे पुट कर दो दोनों जगह तो भी आंसर आएगा, इतने मेगा की वैल्यू पुट कर दो इतने भी मेगा की वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों की बन गए 0। तो हम जो 0 पुट करा तो आ चीज़ 0 बन गई, इतना आर का स्केयर आ गया, आर का स्केयर अंडर रूट आ गया, आर निकल गया, तो आर नार कट के करेंगे तो अपने को जी पी एवरेज की वैल्यू कितनी है एफ नोट का स्केयर अपॉन 2 आ। हम देखो फिर उतनी ग्राफ बनाओ, इधर पी एवरेज लिख ली, इधर आप मेगा लिख ली, जो मेगा टाइम्स टू 0 से जी एवरेज वैल्यू से वो टाइम्स टू 0 से, जो मेगा टाइम्स टू इनफिनिटी तो भी ये नाल नहीं जोड़ना, ये टाइम्स टू 0 करना मतलब ये इनफिनिटी से जाके मैच करना, इतने नहीं है मैच करता, इतने तो इनफिनिटी है नहीं, इनफिनिटी नाल नहीं जोड़ना, ठीक है। इधरों आप जोड़ सकते हैं करते, ठीक है। उस तो बाद जो नैचुरल फ्रिक्वेंसी है तो आ वैल्यू आ गई, मतलब इतने पॉइंट मान लो इतों आ जी वैल्यू है ये कि है एफ नोट का स्केयर अपॉन 2 आ, ठीक है। आ अपने को इतों आप ग्राफ बनाना आ चीज़, ठीक है। ये अपने को पावर सप्लाई टू द फोर्स ऑसिलेटर। हम जो पावर आप डिसिपेटेड कढ़नी है बिना नुकसान हो रहा लॉस हो रही है पावर, ठीक है, वो किमें कढ़नी और जी न्यूमेरिकल नीचे प्रॉब्लम 1.07। हम जी डिसिपेटेड फोर्स आ वो डिपेंड करती है वेलोसिटी, जी डिसिपेटेड फोर्स आप लिखी सी पहले चैप्टर से जो डैंपिंग मैकेनिकल ऑसिलेटर मैं आर डी एक्स पॉन डी टी, डी एक्स पॉन डी टी की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की है वेलोसिटी, तो एफ इक्वल टू मैंस आर इंटू वी के बराबर आ गया, ये आप कटन लगे पावर डिसिपेटेड। हम पावर डिसिपेटेड कि बराबर है डिसिपेटेड फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पावर तो वही चीज़ है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पर डिसिपेटेड लॉस करना इस करके आप माइनस शो किया, माइनस डिसिपेटेड फोर्स जी फोर्स है इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एफ इंटू वी है, एफ की वैल्यू आप पुट करती माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि एफ की वैल्यू माइनस आर इंटू वी थी, तो अपने को आर इंटू वी का स्केयर बन गया, वी की वैल्यू अपन पता पावर वेलोसिटी ये वैल्यू आप पुट करती,
एवरेज कढ़नी है 1.t 0t p/t इंटीग्रेशन करके, ठीक है। इंटीग्रेशन करने तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लिया, ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ਕੱਢਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ cos स्क्वायर ओमेगा टी - 5 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 1 प्लस फार्मूला था 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी + 5 डिवाइड बाय 2। फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेशन लग कर ली 2 1/2 बाहर ਕੱਢ लिया, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ dt 0t इंटू नाल आधा कल्ले रह गया 0t cos 2 ओमेगा टी - 5 इंटू dt। ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करेंगे कल्ले अपने को t आ गई, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करेंगे अपने को 0t cos 2 ओमेगा टी - 5 की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि जिवें तुहानूं पहलां गया सीगा sin 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी वैल्यू हमेशा 0 होंदी है। इस भी हुण cos 2 ओमेगा टी - 5 है तो 2 ओमेगा टी, इहनूं आपां सारे नूं आपां ऐ लिख लो भी सारे नूं आपां थीटा लिख लो 2 थीटा, वो भी 0 आ गया, ठीक है। तो हुण इहदी वैल्यू आपां पुट करती इत्थे, तो अपने को आ चीज़ है ये आप जो सॉल्व करेंगे तो अपने को पावर आ जू r f0 का स्केयर अपॉन 2zm का स्केयर। हूँ कि बराबर तो मैं हुणे दस्सिया सी भी ये पावर सप्लाइड बराबर, इसका मतलब पावर डिसिपेटेड और पावर सप्लाइड दोनों की है बराबर। उस तो बाद अपने को आ गया बैंड विड्थ। बैंड विड्थ की होंगी द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स एट विच द absorb पावर जी absorbed बाय द ऑसिलेटर 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पावर। जी मैक्सिमम पावर है जो आप हाफ कर दी, जी मैक्सिमम पावर आ वो आप हाफ कर दी और एक कॉरस्पोंडिंग आप एक लाइन ड्रा कर दी, वो कॉरस्पोंड दो फ्रिक्वेंसी जी ग्राफ में कट के दो फ्रिक्वेंसी ने मैच कर दी, वो जो फ्रिक्वेंसियां दोनों का डिफरेंस आ उन्होंने आप कहते बैंड विड्थ, ठीक है। ये आप करेंगे पार्ट 3 ठीक है। धन्यवाद।